Good morning, students. So, I hope all of you are fine and enjoying your study. So, pray to all of you are immediately start your school, okay? So, we are taking now what SST. So, in which we are studying under what lesson number second, prejudice, stereotypes and discrimination. So before that we seen about what discrimination, prejudice and stereotypes. Okay. So next is that striving for equality. We get some, are we acquainted with some inequality, how to exist in our society. Okay. So inequality on the basis of caste, religion, sex, gender. Okay, caste, religion, gender, place of birth and so on. Okay, so inequality, how to inequality are exist. Some people in society doing some kind of job like washing, hair cutting, washing, butcher, and again what garbage picking and what sanitation. So these are members of society are considering by the superior peoples. Okay, so what happened in that the caste system. Okay, there is what caste system, and caste will be decided on the basis of work. Okay, on the basis of work which is done by member of society. Okay, caste system. So कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि यानी कौन सा जो एक समुदाय जो होता है ना, एक समुदाय होता है, उसमें ऊपर में क्या होता है कि जातिगत व्यवस्था है ना, जिसके तहत क्या किया गया है कि लोगों को उनके पर्टिकुलर जाति में वर्गीकरण किया गया है. सो ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दैट. ओके, आपने कभी सुना होगा कि जो लोहार है ना, सो लोहार यानी लोहे से रिलेटेड काम करता है, सुनार है तो सोने से रिलेटेड काम करेगा, है ना. जो भंगी वगैरह जो होते हैं वो दे आर व्हाट सैनिटेशन वर्कर्स. ओके, सो ये सब चीजें क्या है कि बहुत जमाने पहले से इंडिया में यानी एंशियंट टाइम से दीज आर कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग. ओके, बट यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड कास्ट सिस्टम it is exist from the ancient time. So what happened? So in the caste system, what there are four system. Okay, है ना, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. ओके, क्या था कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, यानी ब्राह्मण, नेक्स्ट इज क्षत्रिय, नेक्स्ट वैश्य, नेक्स्ट है शूद्र. सो दीज आर द व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द एंशियंट टाइम. ओके, ये एंशियंट टाइम में से चलते आ रहा है. तो ब्राह्मण का फंक्शन क्या था कि टू टीच एंड टू religious practices. Okay, teach and religious practices. क्षत्रिय का काम क्या था कि he is a warrior. Okay, इन्हें फाइट करना. वैश्य, these are the tradesmen. Okay, traders. And these are what service provider. Service provider. थोड़ा ये वैरायटी है, service provider. So these kinds of classification exist from ancient time. Okay. So the caste system was prevalent in ancient time and it divided society into the groups as per the occupations practiced by the people. है ना, जैसे जो जो लोग जो भी occupations करता था, I tell you before that's लोहार, सोनार, है ना, कारपेंटर, smelter and so on. Okay, so the mortar, तो ये सब जो काम करते थे उसके बेसिस पे उनका कास्ट का क्लासिफिकेशन होता था. ठीक है, अब इसमें से जो सबसे फोर्थ वाली जो क्लास थी, है ना, इट्स कंसिडर इज व्हाट इम्प्योर. है ना, इम्प्योर यानी बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क मींस दे व्हाट, यानी वो क्या करते थे कि जो बस्तियों में जो
ये थे, है ना, कि वहाँ की गंदगी साफ करना, वहाँ के अगर मरे हुए जानवर हैं उनको शॉर्ट आउट करना, बाहर लेके जाना, है ना, तो उनके वो काम के बेसिस पे दे कंसिडर एज अ इम्प्योर कम्युनिटी, ओके, एंड सो कॉल्ड दैट इम्प्योर कम्युनिटी नाउ डेज आर व्हाट, उनको क्या बोलते थे, अनटचेबल्स, एंड नाउ डेज आर दे आर क्लासिफाइड, notified as a scheduled caste, okay, and that communities people is belonging to the scheduled caste. और क्या होता था उसमें कि उसको उनको पहले क्या था कि दे आर फोर्स टू लिव आउटसाइड इन विलेजेस, ओके, आउटसाइड इन विलेजेस, एंड दे नॉट हैविंग अपॉर्चुनिटीज टू टेकिंग एजुकेशन, to accessing public facilities which are available for other people, है ना. तो so some of the leaders of Indian history are trying or striving to accessing all the things by these people also, and they try to achieving equality with them also, okay, नहीं, उनको भी क्या मिलना चाहिए कि एक समानता मिलनी चाहिए, उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि जो सामुदायिक जो फैसिलिटी है ना, पानी है, रोड है, बसेस है, मंदिर है ना, ये सब चीजों को क्या करना चाहिए, उनको भी उपयोग में लाना चाहिए करके क्या किया कि कुछ सम ऑफ द लीडर्स इन हिस्ट्री आर, है ना, कुछ अपने जो नेता लोग जो थे, है ना, लीडर जो थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्रयत्न किया उनको भी एक फ्लो में लेके आने का, है ना. तो कास्ट सिस्टम तो प्रिवेल था लेकिन बट पीपल्स आर स्लो. सो इन सब में किसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, एजुकेशन सिस्टम, ओके. अगर आपको अगर एजुकेशन सिस्टम दी जाए, अगर आज आप देखेंगे कि बहुत सारी हायर पोस्ट है, उसके बाद में डिग्निफाइड पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आज उसमें देखेंगे आपकी सारे लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म है ना, ऑल द पीपल्स आर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एंड लिविंग विद द हार्मोनी. पहले क्या होता था कि क्लास में भी अगर सपोज वो थोड़े निचले वर्ग का है तो उसको सो दैट क्लास स्टूडेंट इज नॉट शेयरिंग द बेंच, शेयरिंग द डाइनिंग एंड सो ऑन, ओके. सो ये बहुत लंबी चौड़ी ये है, ठीक है, बट आर जस्ट फॉर आवर नॉलेज, वी अंडरस्टैंड दैट, ओके. सो नेक्स्ट व्हाट हैपन अगेन दैट ये अनटचेबल के साथ साथ जो महिलाओं की जो स्थिति थी, है ना, द पोजिशन ऑफ वुमेन एट दैट टाइम इज नॉट वेरी गुड, ओके. दे आर नॉट ऑल्सो टेकिंग एजुकेशन एंड नॉट हैविंग फ्रीडम्स टू शेयरिंग देयर व्यूज एंड डिसीजन मेकिंग, ओके. इन फर्दर लेसन्स वी आर टेकिंग अबाउट दैट पंचायत राज एंड सो ऑन, ओके. एंड आपको पता होगा कि आज जैसे अगर आप देखेंगे, है ना, यस्टरडेज वाज न्यूज इज दैट जो अपने स्नीपर डॉग जो होते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका जो कोच है कोई महाराष्ट्र स्टेट में फर्स्ट लेडी है. आई डोंट नो एग्जैक्ट न्यूज बट जस्ट ब्रीफली. सो दिस फॉर यू टू फाइंड आउट इट व्हाट वुमेन आर, आई विल शेयर विथ यू, ओके. So women's and untouchables position is very much bad at that time, but nowadays are striving to equal platforms, okay. Next है constitutions of India and respect for diversity. अब जो भारत का जो संविधान है ना, तो भारत का संविधान है constitutions of India, what will give us, okay. So in the constitutions prevalent caste systems एंड अगेंस्ट टू दैट जो इक्वालिटी जो एग्जिस्ट जो थी उसके अगेंस्ट में क्या किया कि उन्होंने उसको प्रोटेस्ट करके कास्ट सिस्टम को हटाने की कोशिश की, है ना, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन था. फिर उसके बाद में क्या किया उन्होंने कि टू राइट टू एजुकेशन, राइट टू टेम्पल एंट्री, है ना. इसके पहले भी 2-3 साल पहले एक तृप्ति देसाई करके एक वन ऑफ द लेडी, शी इज स्ट्राइविंग फॉर द एंटरिंग इन टू सनी टेम्पल, ओके. सनी शिंगणापुर में जो सनी मंदिर है ना, तो वहां पे जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत ट्राई किया कि महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, है ना. ऐसे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है, इंस्टांसेस है ना, एग्जांपल्स है कि जो आज की तारीख में अपने यहाँ पे ये है, ठीक है. सो द शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइंड फॉर गेनिंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज सच एज एंट्री इन टू द टेम्पल, ओके. तो जो भी ये क्लासेस वाले पीपल जो थे, है ना,
तो इन्होंने क्या किया था, स्ट्राइविंग फॉर द अचीविंग एंटरिंग इनटू टेम्पल एंड सो ऑन. ओके. सो नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स व्हाट हैपन, है ना, भारत को जो स्वतंत्रता मिल गई, व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, एनीबॉडी नो इट? वेरी गुड. 15th of August 1947, है ना. 15th of August 1947 को क्या मिला, भारत को स्वतंत्रता मिली. ठीक है. सो एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फ्रेम किया गया, उसमें कि जो लीडर जो थे, दे आर ट्राइंग टू getting equal status to women, untouchables, scheduled caste peoples, discriminated peoples, and that नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर उस पर्टिकुलर क्लास में आते हैं, जेंडर में आते हैं, कल्चर में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, है ना, तो आपको वो सब सारी चीजें डिनाई होंगी, ये नहीं होना चाहिए, है ना. मीन्स एवरी पीपल हैव राइट टू एक्सेस द ऑल द थिंग्स विच आर नेचुरली अवेलेबल टू ऑल पीपल, है ना. अगर हवा है तो हवा सबको मिलनी चाहिए, है ना. तो ये सब चीजों के लिए क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमिंग की गई, है ना. सो अब उसमें कौन से प्रोविजंस थे, व्हाट आर द प्रोविजंस विच आर अवेलेबल इन कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर एग्जिस्ट इक्वालिटी. ओके. इक्वालिटी को एग्जिस्ट करने के लिए कौन से प्रोविजंस जो थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रखे गए थे. अब देखो, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय द लॉ. क्या किया गया कि एक कानून बनाया गया कि अगर आप किसी अनटचेबल पीपल के साथ में मिसबिहेव करते हैं, है ना, तो अगर आप ऐसी इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं कि सपोज कोई अगर पर्सन है ना, शी इज आइदर लेडी और ही इज अ मेन. सो अगर कोई उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन्स एंड परफॉर्मिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, सो इट शुड बी पनिशेबल बाय लॉ एंड इट शुड बी एबॉलिश्ड बाय द लॉ. ओके. दिस वन इज द फर्स्ट प्रोविजन which are included in constitution. Okay. Next है, the fundamental rights have been provided to the people to secure them freedom and equality. Okay. ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना, है ना, ऐसे कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए अपने संविधान में, है ना, कि जो इक्वालिटी को एग्जिस्ट करने में सहायक हो, है ना. जैसे कि पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर चॉइस. अब देखो, पीपल्स आर फ्री टू ऑक्यूपेशन ऑफ देयर चॉइस, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप कोई भी तरीके से आप अपने जॉब करेंगे, है ना. जॉब ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी या कम्युनिटी में उसका बैड इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, है ना. तो चॉइस ऑफ जॉब और ऑक्यूपेशन, नोबडी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू यू. सपोज मैं अगर सम कास्ट में आता है ना, जो भी कास्ट है व्हाटएवर, तो उसका ये नहीं हो जाता कि मैं सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या करूंगा कि फार्मिंग प्रैक्टिस करूंगा. मैं भी एजुकेशन लेके क्या कर सकता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन कर सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, है ना. सो टुडे वी आर ऑल्सो अगेन वॉचिंग आवर नियर बाय एरियाज. सम पीपल आर फैशन डिजाइनर, है ना. जो फैशन डिजाइनिंग का जो जॉब है, आज देखो कि टेलरिंग कम्युनिटी जो होती है, शिल्पी समाज, वहीं तक के रिलेटेड नहीं है. सो एनी पर्सन गेटिंग ट्रेनिंग अंडर जो भी गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे जो स्कीम्स लाई है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड सो ऑन, उसके तहत क्या कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग लेके आप वो भी जॉब कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकंड वन प्रोविजंस विच आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशंस टू प्रोवाइड equality. Okay. Third one is all citizens are to be treated equal before the law. अब देखो, जो अपने भारत में जो भी कानून कायदे जो है ना, वो क्या होने चाहिए कि उस कानून कायदे के आगे में, सामने में सभी पीपल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना. जैसे सपोज
suppose two examples, A and B. Okay, one person is A, another person is B. Okay, A is very rich, is a poor. Okay, so अगर both the persons committing the same crime, है ना, दोनों ने भी अगर सेम क्राइम किया है तो दोनों को इक्वल क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए. ठीक है, दोनों को इक्वल सजा मिलनी चाहिए. ऐसे नहीं कि अगर रिच है तो इसकी कुछ सजा में, यानी इसके इम्प्रिजनमेंट में कुछ रिलैक्सेशन हो, है ना, और इसको बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में ये होनी चाहिए. नेक्स्ट है कि अगर हेल्थ फैसिलिटी है तो दोनों को भी क्या मिलना चाहिए, सेम कंडीशन में. मीन्स ऑल द पर्सन आर ट्रीटिंग इक्वल बिफोर द लॉ. मीन्स ऑल पर्सन, सभी पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. मीन्स वो अनइक्वल नहीं होना चाहिए. सो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर. इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल टेकिंग another provisions. So thank you, have a nice day, bye bye.